ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने बेटा कोड्स की स्टडी करी, ओके, जिसमें कोड्स की स्टडी जिसमें बीसीडी कोड्स, बाइनरी कोडेड डेसिमल, वेटेड कोड थे जिसमें बीसीडी कोड अपन ने स्टडी करा, एक्सेस 3 कोड का स्टडी करा, ग्रे कोड का स्टडी करा नॉन वेटेड कोड्स में, और इनके कन्वर्जन की स्टडी करी। कन्वर्जन जिसमें अपन ने देखा बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी एंड ग्रे टू बीसीडी एंड बीसीडी टू ग्रे। ओके, आज अपन स्टडी करेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्टिंग कोड्स। स्पेशल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज अपन इनकी स्टडी करेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्टिंग कोड। इसमें सबसे पहले जो कोड अपन एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले कोड आएंगे हेमिंग कोड। हेमिंग कोड्स हैं जिनके नाम से ये अपन एरर को डिटेक्ट करेंगे और एरर को करेक्ट करेंगे। तो हाउ इज इट द Hamming code is working for detection and correcting the code in binary sequence। इसके एक एक पॉइंट को अपन स्टडी करते चलते हैं। तो फर्स्ट वन पॉइंट, error Hamming code is a error detecting and correcting code। okay, second one, it is a 7-bit code। specifically the Hamming code is a 7-bit code which is using the 7 bits as represented in PPT, that the 7 bits position are the P1, P2, D3, P4, D5, D6 and D7। okay, so these are the 1 2 3 4 5 6 7, so 7 bits are using to represent the Hamming code, which are using to error detecting and correcting process। okay, where the D7, D6, D5 and D3 are the data bits and P4, P2 and P1 are the parity bits। okay, next is the condition of the parity bits। condition of the parity bits कौन कौन से इसमें P1, P2 and P4। so the condition of parity bits are identified as the P1 bit। first of all we have to taken a look in P1 bit। the P1 parity bit is defined as the this bit is a select as that it creates even parity over P1, D3, D5 and D7। okay, मतलब P1 parity को P1 बिट्स को इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि इसकी पैरिटी क्या आनी चाहिए, इवन पैरिटी। और किस सीक्वेंस की है इवन पैरिटी, P1, D3, D5 एंड D7। ओके, नेक्स्ट इज द P2 bit is identified as this bit is selected as that it create even parity over the sequences P2, D3, D6 and D7 bits। and next is the P4 bit, parity bit is defined as this bit is selected as that it create even parity over the bit sequence of P4, D5, D6, D7। P4, D5, D6, D7। yes, even parity and odd parity, actually even parity and odd parity को अपन कैसे define करेंगे। even parity that means the number of one in given sequence should be even। okay, odd parity that means the number of one in given sequence should be in odd manner। for example जैसे given data है 1011, तो इसमें कितने वन है, 1 2 3, 3 वन है और एक 0 है। तो बेसिकली ये कौन सा हो गया, odd parity। तो नंबर ऑफ वंस क्या है यहाँ पे, odd 3। ओके, एग्जांपल लें जैसे व्हाट द गिवन डेटा 1011 डिटरमाइन द Hamming कोड। गिवन डेटा सीक्वेंस ये गिवन है और इसमें Hamming कोड को आइडेंटिफाई करना। so the data bits is represent as the 1011, one is related to D3, another one is related to D5, 0 is related to D6 and 1 is related to D7। okay, next P1, P2, P4 आइडेंटिफाई करना है किस फॉर्म में, जो कंडीशन इसमें गिवन है। P1 की कंडीशन क्या है कि टू क्रिएट द इवन पैरिटी ओवर P1, D3, D5, D7। to create the even parity for P1, that is the P1, D3, D5, D7। अब D3 की जगह क्या एलोकेटेड कर रखा है, 1, D5 की जगह क्या है, 1 है, D7 की जगह अपन ने क्या 1 ले रखा है, ये 3 1 है। इवन पैरिटी क्रिएट करनी है, इवन पैरिटी दैट मींस द नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन। तो यहाँ P1 की वैल्यू अपन क्या रखें, 1। जैसे 1 पुट ऑन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो जाएंगे, 4 इज द इवन। सो दैट्स व्हाई P1 इक्वल्स टू 1। ओके,
Similar way for the to identify the value of P2, where the sequence to create the even parity for the sequence is the P2, D3, D6, D7. D3 की जगह put on 1 करा, D6 की वैल्यू कितनी 0 गिवन है, D7 की वैल्यू 1 गिवन है. इवन पैरिटी क्रिएट करना है तो P2 की वैल्यू क्या रखनी है 0 रखनी है. 0 रखते नंबर ऑफ 1 कितने हो जाएंगे इसमें 2 हो जाएंगे. 2 इज द इवन, so that's justified. So P2 equals to 0. Okay. Next similar way to determine the value of P4 for the to create the even parity for the bit sequence is the P4, D5, D6 and D7. Put the value of D5 equals to 1, D6 equals to 0, D7 equals to 1. So in this case P4 should be 0. P4 should be 0. जैसे 0 यहाँ put on करेंगे तो number of 1 कितने रहेंगे 2 रहेंगे. So that's why P4 equals to 0 to create a even parity. So P4 equals to 0. So finalize Hamming code will be the D7 is already given is 1, D6 already given is 6, D5 is already given 1, P4 is identify equals to 0. Next D3 is already given in data sequence, that is the 1. P2 equals to also identify or calculated by the particular sequence. So P2 equals to 0, P1 equals to 1. So that is the final answer, final Hamming code to error detection and correcting. Okay. Another way, the error detection and correction by using the parity check matrix. एक और तरीका होता है जिससे भी अपन एरर को डिटेक्ट करेंगे और करेक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग द पैरिटी चेक मैट्रिक्स. अब उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप्स को अपन आइडेंटिफाई करते चलते हैं. स्टेप फर्स्ट में जनरेटर मैट्रिक्स. टू क्रिएट द जनरेटर मैट्रिक्स वेयर जनरेटर मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई के दैट मींस द k into k cross k identity matrix. IK is defined as the identity matrix of order k cross k. K row है, k column है, so that is the identity matrix. P is the parity matrix. Overall matrix having the order k into n. K row n column. ये k cross n क्या represent करेगा? K तो row है और n column है. Okay, equation first. Second one is the parity check matrix. Parity check matrix का symbol क्या है? Capital H. That is equals to PT, that is parity matrix का transpose, okay, with the related or coordinated with I of n minus k. I of n minus k is the identity matrix. Overall matrix का order क्या रहेगा? n minus k into n. Okay. Step third, C is the correct code word in n comma k. Okay. C is the correct code word in n comma k. N is the row, k is the column. ये इसका ऑर्डर रहेगा और C है करेक्ट कोड वर्ड. किस केस में ये करेक्ट कोड वर्ड रहेगा? When C cross HT equals to 0. That means the C को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन पैरिटी चेक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से. पैरिटी चेक मैट्रिक्स से ट्रांसपोज से, तो दैट शुड बी 0. इस केस में C क्या रहेगा? करेक्ट कोड वर्ड. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. Step third, if received code word is not equal to transmitted code word, then R equals to C plus E, where E is the error vector. इसको अपन एक एग्जांपल से समझे कि जो अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, जो जैसे C यहाँ करेक्ट कोड वर्ड है, तो करेक्ट कोड वर्ड क्या है? एक्चुअली ट्रांसमिटेड कोड वर्ड. ट्रांसमिटेड कोड वर्ड और रिसीव्ड कोड वर्ड दोनों अगर इक्वल है तो एरर क्या हो जाएगी? 0. Is it clear? If error is 0, that means the transmitted code word is same as the received code word. समझ में आया? Okay. So if error और error कहाँ present हो रही है? Due to the transmission और in the way of transmission. जैसे अपन transmit कर रहे हैं तो error उसमें create हुआ. Error किसके साथ attach हुआ? Transmitted code word के साथ, और दोनों मिलके equal output क्या आ गया? Received code word. So received code word basically the transmitted code word plus error. Is it clear? Equation 4. Next, the receiver performing the decoding operation by using the error syndrome vector.
अब ये एरर को अपने को आइडेंटिफाई करना है कि भाई एरर किस टाइप से है, कितना उसका सीक्वेंस है, क्या है उसकी वैल्यू है। तो उस केस में अपन एक सिंड्रोम या एक वेक्टर अपन एनालिसिस करेंगे which are using to determine the error in received code word. Okay, so the syndrome equals to R into H of transpose T, where R equals to C plus E from equation number 4. So multiply दोनों से होगा C H of T E H of T, and from equation number 3, if correct code word is received code word, then C H of T equals to 0. ये अपन इक्वेशन नंबर 3 में पहले ही देखा है। अगर C करेक्ट कोड वर्ड है उस केस में क्या होगा, C H ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0. सो पुट द वैल्यू C H of T इक्वल्स टू 0 इफ द करेक्ट कोड वर्ड. सो सिंड्रोम इक्वल्स टू S इक्वल्स टू E H of T. तो सिंड्रोम का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सिंड्रोम एरर सिंड्रोम वेक्टर विल बी द S इक्वल्स टू E H of T. Step 4th, last step. If error is present in received code word R, if error is present in received code word R, then syndrome vector S will be non-zero. Okay, error अगर present है तो syndrome vector क्या आएगा, non-zero. syndrome vector क्या है, E H of T. Okay, in case the S is compared with the H of T, the syndrome vector S is matched with the row of H of T that indicate the position of error in correct code word. अगर इसमें error present है, then S को compare किससे करना है, H of T से. Then syndrome vector को match करवाना है row of H of T से. That indicate the position of error in correct code word. अब इसको अपन एक example से study करते हैं. For example, जनरेटर मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, ऑर्डर क्या है उसका 7,4, यानी 7 रोज हैं, 7 कॉलम है और 4 रो हैं. ओके, ब्लॉक कोड्स हैं. डिटरमाइन द पैरिटी चेक मैट्रिक्स H एंड एरर इन रिसीव्ड कोड वर्ड. ओके, रिसीव्ड कोड वर्ड क्या है, 1001001. ओके, बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखें अपन इसके रेस्पेक्टिव. फर्स्ट क्या है, मैसेज ब्लॉक. मैसेज ब्लॉक क्या है, के बिट्स का है, इसको अपन एनालिसिस करें, के बिट्स का है. ट्रांसमिटेड कोड वर्ड है, ट्रांसमिटेड कोड वर्ड है, के बिट्स का कोड वर्ड है. इसको अपन किसी चैनल से एनकोड करने के बाद ट्रांसमिट कर रहे हैं. फाइनली क्या आएगा, एनकोडेड ब्लॉक. एनकोडेड ब्लॉक, कोड ब्लॉक जिसको आइडेंटिफाई करते हैं टेक्निकली. कोड ब्लॉक का साइज क्या आ गया है, n, n, k बिट तो क्या है, मैसेज बिट है, और n माइनस k बिट क्या है, उसमें डेटा बिट्स हैं, पैरिटी बिट है. सॉरी, k बिट तो मैसेज बिट, n माइनस k पैरिटी बिट्स हैं. फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, n, k इज द 7,4. डेटा और मैसेज ब्लॉक कितने होंगे, 7 के रेस्पेक्टिव. k बिट है, यहाँ k की वैल्यू कितनी दे रखी, 7. ओके, n माइनस k. So 2 raised to the power 4. 2 raised to the power 4 equals to 16. तो मैसेज बिट्स इसमें कितने आएंगे, 2 raised to power k आएंगे. मैसेज बिट्स कितने रहेंगे, 2 raised to power 4. 2 raised to power 4 के रेस्पेक्टिव क्या लेंगे इसको अपन. अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें जैसे अपन ने इसको शुरू से स्टडी करा हुआ है, इस इक्वेशन फर्स्ट को एक बार दोबारा इसको अपन देखें. जनरेटर मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, आई के पैरिटी के साथ इनक्लोज है. ऑर्डर क्या है, k क्रॉस n. इस इक्वेशन फर्स्ट को कंपैरिजन करें अपन गिवन क्वेश्चन से. गिवन क्वेश्चन में अपने को क्या है, ऑर्डर क्या दे रखा है इसका, ये ऑर्डर क्या है जनरेटर मैट्रिक्स का, यहाँ पे 7,4. तो ये क्या है एक्चुअली, k और n क्या है यहाँ, 4. समझ में आ रही बात, वेयर इज द 7 and 4. तो 7 इज द k एंड n इक्वल्स टू 4. n क्या रहेगा, रोज. k क्या रहेंगे, कॉलम. n की वैल्यू 4 है तो 4 रोज होंगी, 1 2 3 4. k की वैल्यू 7 है तो k क्या है, कॉलम. 1 2 3 4 5 6 7. तो 4 रोज एंड 7 कॉलम. n इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 7.
अपने को केयरफुली उस क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना है, एन और के में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है, बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। ओके, सो n इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 7। सो फर्स्ट डिटरमाइन क्या करना है अपने को, मैसेज, मैसेज ब्लॉक्स हैं, मैसेज ब्लॉक्स को कितने कितने बिट्स का रहेगा, 2 raised to power k 2 raised to power 4 इक्वल्स टू 16। 4 बिट्स के कितने कॉलम्स रहेंगे, 4 बिट्स के अपने कितने कॉलम रहेंगे, 16, 0 0 0 0 0 1 अप टू 1 1 1। तो कितना हुआ, 0 से लेके 15 तक, इसके अपन डेसिमल वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 0 से लेके 15 तक। तो टोटल नंबर ऑफ मैसेज कितने हो गए अपने पास, टोटल नंबर ऑफ मैसेज आर द 16, 0 to 15, तो टोटल इज 16। क्लियर, ओके। जनरेटर मैट्रिक्स इज गिवन इज द दिस वन, इस सीक्वेंस में गिवन है 7 into 4 है, एक्सप्रेशन इसका ये आएगा आई के विद पैरिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद पैरिटी, के इनटू एन, के की वैल्यू कितनी है, यहाँ 7 है, एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ 4 है। ठीक है, 4 रोज हैं, 7 कॉलम्स हैं, ये इस तरह से आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट, अब उस इक्वेशन नंबर सेकंड में जो गिवन है कि डिटरमाइन द पैरिटी चेक मैट्रिक्स, पैरिटी चेक मैट्रिक्स को अपने को डिटरमाइन करना। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 4 into 4, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, 4 into 4। ओके, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आगे अपन यूटिलाइजेशन करेंगे। सो टू डिटरमाइन द पैरिटी चेक मैट्रिक्स, इन केस ऑफ पैरिटी चेक मैट्रिक्स H इक्वल्स टू P का ट्रांसपोज, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है, पैरिटी मैट्रिक्स है ना, ये 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1, इस पैरिटी मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, यानी रो को तो बना देना कॉलम, कॉलम को बना देना रो। तो यानी ये रो है 1 1 1 की रो है, इसको किस में ले जाओ, कॉलम में। तो ये 1 1 1 को कैसे लेके अपन 1 1 1 इस डाउनवर्ड में। ओके, जो हॉरिजॉन्टल है उसको किसमें बना दिया, वर्टिकल में। नेक्स्ट वाला जो रो है 1 1 0, उसको कैसे ले आए अपन, वर्टिकल में, 1 1 0 1 0 1 को 1 0 1 में, 0 1 1 को जो हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल में 0 1 1। तो दैट इज द पी का ट्रांसपोज। ये जो पैरिटी मैट्रिक्स था 3 into 4 का, इसको अपन किसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज फॉर्म में। सेकंड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो n माइनस के है, n माइनस के क्या होगा, 7 - 4 इक्वल्स टू 3 है ना, तो 3/3 का बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म में। तो ये पैरिटी चेक मैट्रिक्स आपको आ गया, क्लियर। n इसका ऑर्डर कैसे लेंगे अपन, n - into n माइनस के क्या होगा, 7 - 4 इक्वल्स टू 3। ओके, n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये कौन सा ऑर्डर का बनेगा, 3 into 4, यानी 3 तो रो, 3 तो रो आएंगे और कितने कॉलम आएंगे, 7। ओके, ये क्लियर हुआ। ठीक है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स समझ में आया सभी के। ओके, नेक्स्ट इज द करेक्ट कोड वर्ड। अब कोड वर्ड की एक्सप्रेशन को याद करने का या इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है कि कोड वर्ड अपन कैसे जनरेट करते हैं कि जो डेटा सीक्वेंस है उसको जनरेटर मैट्रिक्स से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। भाई जनरेटर का काम क्या रहेगा, कोड को जनरेट करना, और कोड को जनरेट एक्चुअली अपने को कहां से करना है, डेटा बिट से। तो डेटा को, इस डी को, इस डेटा बिट्स को सिंपली जनरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली आउटपुट क्या आ जाएगा, कोड वर्ड। तो कोड वर्ड C इक्वल्स टू D into Z। जनरेटर अपने को पता ही है, जनरेटर मैट्रिक्स अपने को क्वेश्चन में गिवन ही है। डेटा सीक्वेंस अपन ने निकाली नहीं, डेटा सीक्वेंस कितनी है, 16 है, और उनके वैल्यूज क्या है, 0 0 0 से लेके अप टू 1 1 1 तक। ठीक है, तो डेटा बिट्स पता है, जनरेटर मैट्रिक्स पता है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो अपने क्या जनरेट होकर आ जाएगा, कोड वर्ड। कोड वर्ड कितने जनरेट होकर आएंगे, 16, क्योंकि 16 ही डेटा सीक्वेंस है, जनरेटर मैट्रिक्स तो फिक्स है, और डेटा बिट्स बार बार चेंज हो रहे हैं। डेटा बिट्स पहले 0 0 0 था, फिर 0 0 1 हुआ, फिर लास्ट में 1 1 1 1। तो जितने डेटा बिट्स हैं उतने ही कोड वर्ड जनरेट होंगे। तो सिंपली द डेटा बिट्स आर मल्टीप्लाइड बाय द जनरेटर मैट्रिक्स, फाइनली क्रिएटेड द पर्टिकुलर कोड वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा सीक्वेंस में 1 0 1 1 ले रहा हूँ, डेटा सीक्वेंस अगर 1 0 1 1 लें, तो जो कोड जनरेट होगा, वो जो कोड जनरेट होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, सो द कोड विल बी द C इक्वल्स, एज वी नो दैट द C इक्वल्स टू D into G, यानी जो डेटा सीक्वेंस है उसको जनरेटर मैट्रिक्स से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो कोड जनरेट होकर आ जाएगा। तो डेटा तो क्या है 1 0 1 1,
जनरेटर मैट्रिक्स अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये पैरिटी मैट्रिक्स है, इनसे मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लीकेशन का क्या प्रोसेस रहता है, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से, इस रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम से, इसको थर्ड कॉलम से, फोर्थ से, तो इस तरह से अपन एक डेटा सीक्वेंस जनरेट कर लेते हैं। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, 0 को मल्टीप्लाई करा 0 से 0 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करा 0 से 0 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करा 0 से 0 हो गया, तो फाइनली क्या बचा 1, ये बना गया। माइक ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ करो। ओके, इस तरह से अपन पर्टिकुलर कोड वर्ड जनरेट करेंगे। नेक्स्ट इसमें अब क्या है, जैसे सिंड्रोम वेक्टर। अब जैसे कोड वर्ड, इसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन का प्रोसेस बता कि अपना डेटा जो मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूँ वो डेटा कौन सा है 1011, उसका कोड मैंने जनरेट करा बाय यूजिंग जनरेटर मैट्रिक्स, वो क्या आया 1011001, यानी शुरू के जो 4 डिजिट्स हैं। ऑब्जर्व करने वाली बात देखो इसमें सी और डी में जो जनरेटेड कोड वर्ड है और डेटा बिट है, उसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि जो शुरू के 4 बिट हैं कोड वर्ड में वो सेम रहते हैं डेटा वर्ड के। जैसे यहाँ 1011 का डेटा वर्ड है तो कोड वर्ड में भी शुरू के 4 बिट वो सेम रहेंगे 1011, लास्ट के 3 बिट अपन ऐड करते हैं पर्टिकुलर कोड के लिए, तभी ये एनकोडेड फॉर्म में आएगा। इज इट क्लियर? अब अपन जैसे सिंड्रोम वेक्टर क्रिएट करें, उस इक्वेशन जो अभी अपन ने एनालिसिस करी है उस इक्वेशन में क्या है, सिंड्रोम वेक्टर एक्चुअली क्या होगा, S = CH(T). कोड वर्ड अब ये अपन ने जनरेट कर लिया, H क्या है यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज लिया, H अपन ने क्या था पैरिटी चेक मैट्रिक्स से बनाया था, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज अपन कैसे करेंगे, रो को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में, इस रो को कन्वर्ट कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, तो ये अपन देख रहे हैं रो को किस में, जो रो थी उसको किस में कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट, इस दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तीसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और फिर सिंपली मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोसेस लगा है। इसको जैसे अपन इससे मल्टीप्लाई करा आउटपुट क्या आ गया 000, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। अगर CH(T) की वैल्यू अगर 000 है तो वो जो कोड वर्ड जनरेट हुआ है वो करेक्ट कोड है, करेक्ट कोड वर्ड, ये मैंने बताया तुम्हें यहाँ। if C is the correct code word then CH(T) must be 0, इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये अपन यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे करेक्ट कोड वर्ड, ये करेक्ट कोड वर्ड, ये करेक्ट वाला कोड वर्ड अपन काम में लें तो CH(T) आउटपुट क्या आना चाहिए 0, तो ये एरर फ्री ट्रांसमिशन है। अब बाय द वे रिसीव्ड वेक्टर जैसे अपना कोड क्या था 1011001 था, इसकी जगह 1001001, यानी अगर इन दोनों को अपन ऑब्जर्व करें जो कोड ट्रांसमिटेड कोड वर्ड और रिसीव्ड कोड वर्ड सी और आर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो इसमें कि सी करेक्ट कोड वर्ड जो मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूं वो क्या था 1011001, पर जो रिसीव होके आया है ना कोड वर्ड वो एक्चुअली क्या आ गया 1001001। तो एक्चुअली कहाँ चेंजेस आ गए इसके, राइट लेफ्ट साइड से तीसरे बिट में, लेफ्ट साइड से तीसरा बिट तो ट्रांसमिट था वो 1 था, जबकि रिसीव होने में वो 1 क्या बन गया 0। आई बात समझ में? तो करेक्ट कोड जो ट्रांसमिटेड कोड वर्ड है और रिसीव्ड कोड वर्ड क्या है, दोनों डिफरेंट है, दैट मींस कि वहां एरर प्रेजेंट है, दैट मींस कि वहां पे एरर प्रेजेंट है। अब उस एरर को आइडेंटिफाई करना है कि किस बिट में एरर है और उसको कैसे सही करा जाए, उसके लिए अपन आगे प्रोसेस देखते हैं। अब इस केस में जैसे अपन ने सिंड्रोम के लिए फॉर्मूला लगाया, तो सिंड्रोम इज रेस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द एरर। सिंड्रोम का एक्सप्रेशन अपन क्या पढ़ रहे थे शुरू से, सिंड्रोम का एक्सप्रेशन क्या बताया मैंने, ये S = RH(T), यानी रिसीव्ड कोड वर्ड को पैरिटी चेक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो। तो S = RH(T), रिसीव्ड ये वाला था, H(T) ये वाला था जो अपन ने रो को कॉलम में कन्वर्ट करा ट्रांसपोज करने में। तो सिंड्रोम वेक्टर RH(T) निकल के क्या आया 101, यहाँ 00 आ रहा था तो करेक्ट कोड वर्ड था, यहाँ 101 नॉन जीरो वैल्यू आई, नॉन जीरो दैट मींस कि वहां एरर प्रेजेंट है। सिंड्रोम इज कंपेयर टू रो ऑफ H(T). इस सिंड्रोम जो निकल के आया है इस H(T) की रो से कंपेयर करो इसको, 101 इज कंपेयर टू ईच रो ऑफ H(T). तो इस रो से अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन सी रो से कंपेयर हो रहा है ये 101 किसके इक्विवेलेंट है, तीसरी रो के, थर्ड रो ऑफ H(T). So S is compared with row of H(T), S is matched with the third row of H(T). It means that third bit of
रिसीव्ड वेक्टर इज इन एरर, इसके लेफ्ट साइड से तीसरी बिट है उसमें एरर जनरेट हो रहा है। इस सिंड्रोम वेक्टर को एच ऑफ टी की रो से कंपेयर करो, जहां ये मैच करेगा उसी बिट में एरर प्रेजेंट है। सो सिंड्रोम इज कंपेयर विद रो ऑफ एच ऑफ टी एस इज मैचेस विद द थर्ड रो ऑफ एच ऑफ टी, इट मींस थर्ड बिट ऑफ रिसीव्ड वेक्टर इज इन एरर। तो थर्ड बिट में एरर है। सो करेक्ट कोड वर्ड क्या है? जो थर्ड बिट में अगर 0 है तो उसका 1 कर देना, 1 है तो 0 कर देना, तो वो करेक्ट कोड वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ जैसे थर्ड बिट 0 है तो 0 को 1 करेंगे तो अपना करेक्ट कोड वर्ड आ जाएगा। तो करेक्ट कोड वर्ड जो थर्ड बिट है, यहाँ 0 इसको 1 कर दो, तो 1 0 1 ये 1 कर दिया अपन ने, तो ये करेक्ट कोड वर्ड आ गया। सो सिंड्रोम वेक्टर IS इक्वल टू R H of T इक्वल टू 0। जैसे अपन करेक्ट कोड वर्ड लेंगे तो उसके इसमें सिंड्रोम क्या हो जाएगा? 0। सिंड्रोम क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ये अपनी एरर को डिटेक्ट करा अपन ने। डिटेक्ट कैसे करा? सिंड्रोम से। करेक्ट कैसे करा? कि 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड बिट इज इन third bit replace as 0 by 1 and 1 by 0, so error will be detect down। so ये इसके प्रोसेस हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। जो फिक्स इसकी स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को अपने को आइडेंटिफाई करना है और उस स्टेप्स के रेस्पेक्ट अपन फॉलो करते जाएंगे तो ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट था, एरर डिटेक्शन एंड करेक्टिंग प्रोसेस। आज अपन इसकी स्टडी के लिए नेक्स्ट क्लास में और अपन आगे पढ़ेंगे इसके कोर्स के एडवांस फॉर्म में। और कोई तुम्हारे कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हो तुम। और बुक्स के लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही रखा है, बुक्स होप सो आपने डाउनलोड कर ली होंगी। बुक्स डाउनलोड करके बेटा उनके जो सॉल्व एग्जांपल है, जैसे मैं आज जैसे जो मैं लेक्चर आपको जहाँ पढ़ाता हूँ ना, उसका यूटिलाइजेशन तभी है कि आप इस लेक्चर को सुनो और सुनने के बाद जो आपने PDF डाउनलोड करा है उसके सॉल्व एग्जाम्पल को आप सॉर्ट आउट करो, है ना। सॉल्व एग्जाम्पल को सॉर्ट करोगे तभी आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये इशू आ रहा है। और उस इशू को आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हो, इस क्लास के बाद भी डिस्कस कर सकते हो। ओके, और क्लास के अलावा आप अपने जैसे गूगल क्लासरूम मैंने बना रखी है, गूगल क्लासरूम से भी उसको आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है ना। और कई बार अपने थोड़ा सा नेट और अपने इसका थोड़ा सा एक्टिव रहो, कि हो सकता है लेक्चर्स का थोड़ा इधर उधर, कई बार क्या है इधर उधर बिजी होते हैं, कई बार नेट का इश्यू आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं उस गूगल क्लासरूम पे जरूर आपके टाइम टू टाइम मैसेज डालता रहता हूँ, है ना। गूगल क्लासरूम में सभी बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे तो उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन सारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो उससे हम जुड़े रहो, और जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी लेक्चर से रिलेटेड या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, फोन भी कर सकते हो, है ना। और उसके गूगल क्लासरूम से भी अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हो, है ना। तो जो भी आपके लेक्चर होते आ रहे हैं उनको आप पढ़ते जाओ, और उसके साथ साथ आपने जो PDF डाउनलोड करी, जो बुक्स मैंने बताई हैं, उनको बुक्स को डाउनलोड करके उनके एग्जाम्पल्स को भी सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर, तभी आपको पता पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, और उस चीज को मुझसे डिस्कस। ठीक है, ओके, थैंक यू।